بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا سوال، کیا بھائی بہن کا ایک ہی بستر پر سونا جائز ہے؟ صحیح جواب ہے، اسلام میں بھائی بہن کا ایک ہی بستر پر سونا مناسب نہیں سمجھا جاتا، خاص طور پر جب وہ بالغ ہو چکے ہوں۔ شریعت میں حیا، شرم اور پردہ کو بہت اہمیت دی گئی ہے، اور غیر محرم کے ساتھ ساتھ محرم رشتوں میں بھی کچھ حدیں مقرر کی گئی ہیں تاکہ فتنہ اور بری خیالات سے بچا جا سکے۔ حدیث اور شریعت کے نظریے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دو، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز نہ پڑھنے پر تنبیہ، ہلکی سزا دو اور ان کے بستر الگ کر دو۔ ابو داؤد، ترمذی۔ اس حدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ بھائی بہن یا کسی اور محرم رشتے کا ایک ہی بستر پر سونا 10 سال کی عمر کے بعد جائز نہیں ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ بچے شرم، حیا اور اسلامی ادب کو اپنائیں۔ اگر بچے چھوٹے ہیں، 7 سے 10 سال سے کم عمر کے ہیں، تو یہ معاف ہے۔ اگر وہ 10 سال یا اس سے بڑے ہو گئے ہیں تو الگ سونا ضروری ہے۔ بڑے بھائی بہن بالغ ہونے کے بعد ایک ہی بستر پر سونا جائز نہیں ہے۔ اسلام ہمیشہ پردہ، حیا اور پاکیزگی کی تعلیم دیتا ہے تاکہ بری چیزوں سے بچا جا سکے۔ دوسرا سوال، کیا آپ جانتے ہیں مصیبتوں پر صبر کرنے سے کیا اجر ملتا ہے؟ صحیح جواب ہے، اسلام میں مصیبتوں پر صبر کرنے کا بہت بڑا اجر، انعام بتایا گیا ہے۔ قرآن اور حدیث میں کئی جگہ اس پر زور دیا گیا ہے کہ جو شخص مشکل وقت میں اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے اور صبر کرتا ہے، اسے دنیا اور آخرت میں بہترین بدلہ دیا جاتا ہے۔ قرآن میں صبر کا انعام 1 سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم تمہیں کچھ ڈر، بھوک اور مال، جان اور پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو، جو لوگ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی رحمتیں اور برکتیں ہوتا ہے، اور یہی ہدایت پانے والے ہیں۔ 2 سورہ الزمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ حدیث میں صبر کا انعام 1 صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی مسلمان کو کوئی تکلیف، بیماری، دکھ، پریشانی یا غم پہنچتا ہے، یہاں تک کہ اگر اسے کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ اس کے بدلے میں اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ 2 صحیح مسلم میں موجود ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے آزمائش میں ڈالتا ہے، اگر وہ صبر کرتا ہے تو اللہ اس کی آزمائش کو اس کی بھلائی اور گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ مصیبتوں میں صبر کرنا آسان نہیں ہوتا، لیکن اس کا اجر بہت بڑا ہے۔ جو لوگ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، تکلیفوں میں بھی صبر کرتے ہیں، انہیں دنیا اور آخرت میں بہترین انعام ملتا ہے۔ صبر کرنے والوں کو جنت کی خوشخبری دی گئی ہے، اور اللہ انہیں بے حساب اجر دینے کا وعدہ کرتا ہے۔ تیسرا سوال، کیا اسلام میں کسی کو گود لینا جائز ہے؟ صحیح جواب ہے، اسلام میں گود لینا مکمل طور پر حرام نہیں ہے، لیکن اسے اسلامک شریعت کے احکام کے مطابق کرنا چاہیے۔ اسلام میں گود لینے کی جو جدید رواج ہے، جس میں بچہ قانونی طور پر گود لینے والے والدین کی بچہ بن جاتا ہے اور اس کی اصلی پہچان بدل جاتی ہے، یہ درست نہیں سمجھا جاتا، بلکہ اسلام میں کفالت کو حوصلہ افزائی کیا گیا ہے، جس میں یتیم یا ضرورت مند بچوں کی دیکھ بھال کی جاتی ہے، لیکن ان کی اصلی پہچان اور نسب نہیں بدلی جاتی۔ اسلام میں گود لینے کے احکام 1 بچے کا اصلی نسب نہیں بدلا جا سکتا۔ قرآن سورہ الاحزاب میں کہا گیا ہے کہ گود لیے گئے بچے کو اس کے اصلی باپ کے نام سے پکارا جائے۔ 2 وراثت انہیریٹنس کا احکام مختلف ہوتا ہے۔
गोद लिया गया बच्चा गोद लेने वाले वालिदैन की जायदाद का वारिस नहीं होता, लेकिन वसीयत के जरिए उसे तीसरा हिस्सा दिया जा सकता है। 3. महरम निकाह के अहकाम बरकरार रहते हैं। अगर कोई लड़का या लड़की किसी खानदान में परवरिश पाता है तो वो उन वालिदैन के सगे औलाद नहीं बनते। इस वजह से बड़े होने पर उनमें महरम, नजदीकी रिश्ते जिनसे निकाह हराम होता है, ये लागू नहीं होता। इस्लाम में यतीम और जरूरतमंदों की देखभाल को बहुत पसंद किया गया है, लेकिन गोद लेने का मतलब उनके असली माँ बाप की पहचान मिटाना नहीं होता। इस्लाम में कफालत को इख्तियार करना सबसे बेहतरीन तरीका समझा जाता है। चौथा सवाल, क्या आपको मालूम है कौन सा दरख्त जन्नत में भी है और दुनिया में भी है? सही जवाब है खजूर का दरख्त। एक ऐसा दरख्त है जिसका जिक्र जन्नत और दुनिया दोनों में मौजूद है। हदीस में जिक्र है, हदीसों में खजूर के दरख्त को मुसलमान का दरख्त कहा गया है क्योंकि ये इंसानों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। जन्नत में मौजूदगी, बाज रिवायतों में आता है कि जन्नत में भी खजूर के दरख्त होंगे जिनके फल दुनिया के मुकाबले कई गुना बेहतर होंगे। कुरान में खजूर का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बहुत से मकामात पर खजूर का जिक्र किया है, जैसे कि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वक्त भूख लगी थी तो उन्हें खजूर खाने का हुक्म दिया गया था। खजूर का दरख्त और दुनिया। खजूर का दरख्त दुनिया में बहुत फायदेमंद समझा जाता है। ये सिर्फ खाने के लिए ही नहीं बल्कि कई बीमारियों के इलाज में भी काम आता है। खजूर का दरख्त जन्नत और दुनिया दोनों में पाया जाता है। पांचवा सवाल, क्या कुत्तों को घर में रखना शरीयत में जायज है? सही जवाब है, इस्लाम में कुत्तों को घर में रखने के बारे में मुख्तलिफ मसालिक में मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। आमतौर पर इस्लामिक शरीयत में कुत्तों को घर में रखने की इजाजत सिर्फ खास हालातों में दी गई है, जैसे 1. रखवाली। अगर कोई शख्स अपनी हिफाजत, खेत, जानवरों या घर की हिफाजत के लिए कुत्ता पालता है तो इसकी इजाजत है। 2. शिकारी कुत्ता। शिकार के लिए तरबियत याफ्ता कुत्ते को रखने की इजाजत है। 3. पुलिस और खोजी कुत्ते। अगर कुत्ते का इस्तेमाल खोजी मकसद जैसे पुलिस, ड्रग डिटेक्शन के लिए हो रहा है तो इसकी भी गुंजाइश है। घर के अंदर रखने पर हदीस की राय। कुछ हदीसों में कुत्ते को घर के अंदर रखने से मना किया गया है, खास तौर पर बिना किसी जरूरत के। सहीह मुस्लिम और सहीह बुखारी की हदीसों के मुताबिक बगैर किसी वजह के कुत्ता पालने से इंसान के अच्छे अमल में से हर दिन सवाब में कमी होती है। पाकीज़गी से मुताल्लिक पहलू। इस्लाम में पाकीज़गी का बहुत ख्याल रखा जाता है और कुत्ते की लार को नापाक समझा गया है। हदीस में यह भी आता है कि अगर कुत्ता किसी बर्तन में मुंह डाल दे तो उसे 7 बार धोना चाहिए, जिसमें से 1 बार मिट्टी से धोना जरूरी है। सहीह मुस्लिम। अगर कोई शख्स हिफाजत, शिकार या खेती जैसे जायज वजह से कुत्ता पालता है तो इसकी इजाजत है, लेकिन उसे घर के अंदर ना रखें, बाहर या किसी अलग जगह रखना बेहतर होगा। साथ ही सिर्फ पालतू जानवर के तौर पर या बिना किसी जरूरत के घर में रखने से बचना चाहिए। अगर आप किसी खास मकसद से कुत्ता रखना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि किसी आलिम से मशवरा कर लें। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल के आइकन को जरूर ऑन करो ताकि आप इस्लाम के मुताल्लिक तमाम बातें सुनकर इल्मे दीन हासिल कर सकें। अगर आपके दिल में किसी भी किस्म का शक व शुबहात है तो कमेंट में पूछिए, इंशाअल्लाह मैं उसका जवाब दे दूंगा। छठा सवाल, रमजान की चांद रात को किस सूरह की तिलावत करने वाला कभी गरीब नहीं रहता? सही जवाब है, रमजान की छांत रात को सूरह वाकिया की तिलावत करने वाला कभी गरीबी का शिकार नहीं होता। हदीस शरीफ में आता है कि सूरह वाकिया को रात में पढ़ने से इंसान को कभी तंगदस्ती और गुर्बत का सामना नहीं करना पड़ता।
खास तौर पर रमजान की चांद रात में इसकी तिलावत करने की बड़ी फजीलत है। हदीस मुबारक में जिक्र हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हर रात सूरह वाक़िया की तिलावत करेगा उसे कभी गरीबी नहीं आएगी। इब्न कसीर तफसीर। इसलिए मुसलमानों को खास तौर पर रमजान की चांद रात और पूरी जिंदगी इस सूरह की तिलावत का एहतमाम करना चाहिए। 7वां सवाल, रमजान की पहली तारीख को हम बिस्तरी करना क्यों जरूरी है? सही जवाब है, इस्लाम में रमजान एक मुकद्दस महीना है जिसमें रोजे रखना, इबादत करना और अल्लाह का रहमतें तलाश करना अहम समझा जाता है। जहां तक रमजान की पहली रात हम बिस्तरी करने की बात है तो इस्लाम में इसकी कोई शरई जिम्मेदारी या जरूरत नहीं है। इस्लामी नजर से 1, कोई मजहबी फरीजा नहीं। रमजान की पहली रात को हम बिस्तरी करना इस्लामी तालीमात का कोई लाजिम हिस्सा नहीं है। 2, रोजे के दौरान मुमानात, तुल्लु आफ्ताब से लेकर गुरूब आफ्ताब तक, सहरी से इफ्तार तक मियां बीवी को हम बिस्तरी से दूर रहने का हुक्म है। सूरह अल बकरा। 3, रात में इजाजत, इफ्तार के बाद से लेकर सहरी से पहले तक मियां बीवी के लिए हम बिस्तरी की इजाजत है। 4, इबादत की अहमियत, रमजान की रातों में खुसूसी इबादतें, नवाफिल, तहज्जुद, तरावीह की ज्यादा अहमियत दी गई है। गलत फहमी क्यों होती है? कुछ जगहों पर यह अकीदा पाया जाता है कि रमजान की पहली रात हम बिस्तरी करने से पूरे महीने की बरकतें बढ़ती हैं या ये मजहबी तौर पर जरूरी है, लेकिन ये इस्लामी अकायद पर मबनी नहीं है बल्कि ये सखाफती या खानदानी अकीदे पर मबनी है। रमजान की पहली रात हम बिस्तरी करना वाजिब नहीं है और ना ही इससे जुड़े कोई मजहबी फायदे बताए गए हैं। ये मियाँ बीवी की बाहमी रजामंदी और राहत पर मुनस्सर है। रमजान में असल तवज्जो इबादत, रोजा, तिलावत और खुदा की रहमत हासिल करने के लिए होना चाहिए। अल्लाह ताला हमें रमजान की पूरे महीने की रोजे रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।